先包头，先是包头了，你。এখন ঠিক আছে Good morning, everybody. Good morning, everybody. I want you to understand something. My name is Sunanda. I am a cowherd man. I am one of the many cowherd men in the company and under the guidance of Sri Nanda Maharaj. Nanda Maharaj ki! This is Ananda. He's also a cowherd man under the guidance of Sri Nanda Maharaj. Nanda Maharaj ki! And this is, what's your name? Upananda. He's also a member of the cowherd community. But you don't realize this, but you are also, for the purpose of this drama, cowherd men and cowherd ladies. We are all gopas and gopis now. Okay? Okay, so now where have we come? We are now in the place called Nandabata. What does that mean? Baitak comes from Baitna, which means a place to sit. And frequently, at different times around Vrindavan, Nanda Maharaj and his associates would sit and have meetings. Administrative meetings, meetings about the affairs of the town, but all of the meetings ultimately centered on Krishna and Krishna's welfare. So this is one of the very famous places that we have met. Near here is also a place where Jashoda Devi bathes, her own kund, Jashoda Kund. Near also is a place called Halbilau, which is a place where when Krishna would not come to take his meal, Jashoda Devi said, oh, well, if you want to stay here, feel free, but this is the place of the Halbilau, the ghosts. And if you stay here, I cannot guarantee your safety. And Krishna said, oh, mother, ghosts? And they had a little discussion, and Krishna, out of fear, ran back to eat lunch with his mother on time. But today, some of us cowherd men have a concern. And you should also be concerned. You know, in our village, we all consider Krishna our dearmost friend. All the elderly ladies consider him like their own son, don't you? Yes. Isn't he like your son? Some of you younger ones secretly consider him your boyfriend. The cowherd boys among you, you're considering him your friend. You older gentlemen, older cowherd people, you consider him also your son. But to all of us, up until now anyway, he's appeared to be like an ordinary boy, but my good friend, Ananda, brought a point up. Sunanda. Sunanda! I'm Sunanda. All right. Listen, Upananda. I've got a doubt. Have you seen how Nanda Baba treats Krishna? Like he's an ordinary little kid. Yeah? Well, don't you know he just 7 days and 7 nights he lifted Govardhan? Do you think an ordinary kid can do that? Does that sound very likely? I can think of other instances too. He's not an ordinary boy. Can you remember? Well, there was the time when he was just born and only a few days old, and he managed to somehow or other kill this giant demoness, Rakshasi Putana, 8 miles high demoness, more powerful than anybody on the planet. Even Kamsa had to make an alliance with her. Does that sound like an ordinary boy? No!
What else? Well, I remember when a terrible whirlwind came, and it wasn't just a whirlwind. A huge demon carried Krishna high into the sky. That was Trinavarta, wasn't it? Yes, and Krishna caught hold of his neck and he fell down, and the demon died. Is that an ordinary boy? Oh! And what about that Shankachuda? Oh! Remember, he couldn't take a form, and he went into that giant bullock cart? It was filled with pots and all kinds of paraphernalia. What did I say? Anyway, go on. Oh, I said Shankachuda. Well, he did that one too. And that was a pretty powerful demon as well. This boy is doing all kinds of things. Anyway, he was just a teeny little boy. And with his tiny little toes, he kicked the cart, shattered to bits, and killed the demons. I remember at the time, his little friend said what happened, and none of us believed it. But now I'm beginning to think maybe their version was correct. Do you remember what happened when Mother Yashoda looked into his mouth? Do you remember what she saw? I heard, but I didn't believe it. What was that? She saw the whole universe, all the planets, and herself inside, looking into his mouth. Is that an ordinary boy? Oh! I think we should talk to Nanda Baba. Shall we? I think we should talk to him about the time his wife tied Krishna up. Oh, remember those two trees? That boy came in between, pulling the mortar? And those two huge trees sitting there for so long, they fell in such a big crash? How did they fall anyway? I never could understand that. The little boys again said that it was Krishna that did it. At the time, I didn't believe it. I seen Mother Yashoda twist Krishna's ear. Can you imagine? And I remember when Nanda Baba had him put his shoes on his head and carry them. I mean, if he's not an ordinary boy, I think we should talk to Nanda Baba. We could all be in big trouble. Let's talk to Nanda Baba. Oh, Nanda Baba! Oh, Nanda Baba! Nanda Baba ki Oh, Nanda Maharaj! Yes, my dear cowherd men, I have been overhearing your conversations. So, please, let me know, what is your concern? Well, it's like this. You see, You don't mind telling us. well, listen. Please don't take offense. You see, you're treating Krishna like he's an ordinary little kid. Like very informally. Sometimes punishing him, sometimes chastising him. But we can see he's not an ordinary kid. You know, we've been going over some incidents like lifting Govardhan Hill, like killing a lot of demons, and, you know, we think you should change the way that you deal with Krishna, because we see he's not an ordinary person. In fact, and this is where we're coming to the main point, no ordinary child could do any of this. Yes. In fact, we think he might be God himself, the lion! And what are you treating him like an ordinary boy? What are you punishing him for? Your wife is tying him up! Are you out of your mind? Well, what have you got to say about that? Yeah, what do you got to say? About that, Nanda? My dear cowherd men, you have not proven the famous proverb that I've been hearing my whole life. Do you know what that proverb says? Are you going to tell us? Yes, Okay. that proverb, it tells that here in Braj, the cowherd men, they grow up. And even when they're 80 years old men,
Still, their milk baby teeth have not come in. Do you believe what he's saying? Now I'm completely convinced. The statements that you have just told me have completely convinced me that you don't know anything. Shall we believe him? You don't know anything. You have no wisdom. You have no wisdom. Let me tell you something now, okay? I've heard what you said. What about the trees falling down? Yes, I've heard all of these statements. Yes. And what are you trying to tell? You are trying to tell that my little son, Krishna, that he is Bhagavan? Right! Is that what you're trying to say? Gargacharya said so, must be right. Please tell me, all you cowherd people, are you trying to tell me that my little son Krishna is Bhagavan himself? Yes! Let me tell you something, okay? I know this little boy from his birth. I have been watching him, and I have seen no symptoms of Bhagavan in this boy. No symptoms. Yeah, you say, but I have not seen. I have watched him since his birth. Let me ask you a few questions, my dear cowherd. If you say that he is Bhagavan, okay? Does Bhagavan throw himself on the floor and cry and kick his arms and legs and scream and say, Makan, Makan! Misri, Misri! Roti, Roti! Is this Bhagavan, huh? Tell me, my dear cowherd people, does Bhagavan do this? Does Bhagavan become hungry? Does Bhagavan throw a baby tantrum because he can't get Makan and Misri? You see? I'm proving my point. But I have more to tell you. Not only this, he doesn't show that he's Bhagavan because he's hungry, but let me ask you another question. Okay, Bhagavan has various symptoms. If he's going to be Bhagavan himself, I should be able to see those symptoms in him, yes? Yes. But let me ask you this question. Does Bhagavan lie and steal? Is that Bhagavan? He goes around lying and stealing You think that's Bhagavan? Okay. Well, this boy, my little son Krishna, he goes everywhere, into all the gopis' houses in Braj, and he's always stealing their butter, their yogurt, and he's always causing so much mischief, and he's running away, and then he comes back to the house, and he lies and lies and lies. So, my dear cowherd, let me ask you now, your very wise statements. He said it. Is that Bhagavan? Huh? Lying, stealing, cheating, crying? Is that Bhagavan? I never thought he was Bhagavan. You see, no symptoms I have witnessed in my son. No symptoms whatsoever. And you see, the fact of the matter is this. Even if my son is Bhagavan, even if this little boy Krishna, even if he is Bhagavan himself, my duty as his father is to discipline him. Because if I don't discipline him, he will grow up like a criminal, lying, stealing, cheating, murdering, and doing all these things. So even if he's Bhagavan, he is my son, and I will discipline him. You understand, cowherd man? Huh? You understand? But listen. I understand your concerns. I understand your concerns, huh? I do. Because you've seen this boy do so many amazing, wonderful activities, superhuman activities. Yes, it's true. But listen, I think there's one way that we can explain this. You know, when my son was born, Gargacharya, he came. Yes. And Gargacharya, he read his horoscope. Yes. And he told us
that this boy, he will be so amazing personality that he will be like Bhagavan. You understand now? Yes. Like Yes. Bhagavan. So he's not really God. I told you. there's no possibility that he's God. You understand, Power people? Krishna, there's no way that he can be Bhagavan. You understand now? Yes. That means you're real rich Vasis. Hare Krishna. Like Bhagavan. Like Bhagavan. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हम लोग श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये नंदा क्रीड़ा है। यहाँ पर नंदा हुआ का जो 9 लाख गैया यहीं पर उनको छोड़ दिया जाता था। गुरुजी कहते थे जैसे हर जगह में गैया को बांध कर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बंधन नहीं, वैसे ही खोल देते थे। गुरुजी कहते हैं कि ब्रज में सबके सब भक्ति, यहाँ पर राग भक्ति है, यहाँ पर कोई बंधन का काम नहीं। बंधन का वैदिक भक्ति में ही ये बंधन होता है, राग भक्ति में कोई बंधन नहीं। इसलिए सबके सब छूट है। इसलिए अभी आप लोग भक्ति में गंभीर होना पड़ता है, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है हम सबके सब हंस रहे हैं। लेकिन कहा भक्ति में इसलिए प्रेम रख दिया कि सदा उल्टी बहे धार, भक्ति उल्टी बहती है। यहाँ पर कोई बंधन नहीं, यहाँ पर कोई गंभीर नहीं। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ये ब्रज रस में ऐसे शराब हो जाते हैं, अपना ब्रह्म ज्ञानी को छोड़ करके वो प्रेमानंद में डूब जाते हैं। इसलिए यहीं पर गैया सबके सब छोड़ देते थे, यहीं पर रहते थे। एक समय कृष्ण बलराम सोच रहे हैं। कृष्ण ने कहा ताऊ क्या बात है? बोले जब हमारा ऊपर में कोई विपत्ति आ जाए, ये मैया ये गोबर को रज और ये गोमूत्र से ये हमको स्नान कराती रहती है। इसका क्या मतलब हमको समझ में नहीं आता है। चलो तो हम दोनों जाते हैं, अपने आप गोमूत्र गोबर और कीचड़ शरीर में लगाए। अभी अभी भैया जसोदा कृष्ण बलराम को बड़ी सुंदर श्रृंगार कर बल तुम खेलों में काम कर रहे हो। कृष्ण बलराम ने क्या किया, यहाँ पर जो गैया थे, गैया को बीच में आ गए और गोबर गोमूत्र और जो कीचड़ था सबके सब सारा शरीर में पोंछ दिया, पूरा शरीर में। और कृष्ण बलराम दोनों बैठे हुए हैं। मैया ने देखा ये दोनों दुष्ट। मैया ने कहा कन्वा बलवा कहाँ हो? इतने में आवाज आई। बोले मैया हम यहाँ हैं। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? इतने में मैया जसोदा आकर के देखा, अभी उनको स्नान करा था और इतने सारे श्रृंगार को सब बिगाड़ दिया। गोबर और गोमूत्र कीचड़ से सारा शरीर को पोत दिए। इतने में मैया जसोदा आकर के कृष्ण बलराम दोनों को कान तो पकड़ लिए। बोले क्यों रे चोर चोटे, हाँ अभी तुम लोगों को स्नान और श्रृंगार कराया, सबके सब बिगाड़ दिया। तब मैया श्री बिल्लो मंगल कहते हैं, बोले तुम सुकर असी गत पुतनारे, हे पुतना के अरी तुम सुकर असी। क्या तुम दोनों पूर्व जन्म में सुअर थे? ये सुअर का काम होता है गोबर कीचड़ गोमूत्र
ऊपर से लौट पट कौन खाता है कीचड़ में? कहते ये सुअर, बोले क्या तुम सुअर हसी, क्या तुम सुअर थे? इतने में कृष्ण अपना सिर कहते मैया में तो सुअर ही था, लेकिन ये मैया कैसे पता चल गया? ये मैंने सबसे जो मैंने बराह अवतार किया, ये बराह अवतार सुअर का अवतार, लेकिन ये मैया कैसे पता चला मैं सुअर था? इसलिए भगवान यहाँ पर ब्रज कर्तव्येषु भगवान स्वयं जैसे सांप कीचड़ में जैसे लौट पट खाते हैं, भगवान ये ब्रज की गोबर की गोमूत्र की उन्होंने भगवान महिमा को भगवान दिखाया। इसलिए यहीं पर श्री नंद बाबा कृष्ण बलराम दोनों भैया को लेकर के ये नंद कुंड है। इसमें ही कृष्ण बलराम को मैया जसोदा कृष्ण बलराम को दोनों बैठा लेते थे और स्नान करते थे। लेकिन दोनों बालक इतने चंचल है, इसलिए कभी रोहिणी मैया कृष्ण को देखती थी जसोदा स्नान करती थी, कभी जसोदा देखती थी, कभी श्री मैया जसोदा स्नान करती थी। और यहीं पर बैठ करके आप लोग श्रवण कर रहे थे, ब्रज में जब जब कोई विपत्ति आ जाए सबके सब ब्रजवासी लोग यहीं पर एकत्रित होते थे। यहीं पर एकत्रित होकर के कैसे कैसे विपत्ति आ रहा है, अभी कृष्ण बलराम को कैसे हम लोग रक्षा करें, अभी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, सबके सब यहीं पर डिस्कशन हुआ करता था। अभी अभी आप लोगों ने ड्रामा देखा है, जब भगवान कृष्ण अभी तक उन्होंने जो छोटे मोटे उन्होंने लीला किया है, कभी कभी ब्रजवासियों को मन में कभी कभी ये शंका आ जाती थी, लेकिन जब कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने 7 साल बालक 7 दिन तक 7 वर्ष गिरिराज को धारण किया, अभी तो जितने ब्रजवासी लोगों ने सोचा ये तो लगता है कृष्ण कोई साधारण भगवान होगा, नहीं तो इतना बालक इतने बड़े काम थोड़ी कर सकता है। इतने में सबके सब जो यहीं पर आए, अभी ड्रामा देख रहे थे, सारे ब्रजवासी श्री नंद बाबा को बोले नंद बाबा अरे कम से कम अभी तो विश्वास करो, तुम्हारा ये लाला कोई साधारण है नहीं, साधारण बच्चा कभी इतना बड़ा काम कर सकता है? अरे अभी तो मान जाओ ये चीज को स्वीकार करो, कृष्ण भगवान नंद बाबा ने देखा अभी मेरा लाला ये ब्रजवासियों को विपत्ति से निकाला, अभी मेरे बेटे के ऊपर भी विपत्ति आ गया, इसका मतलब है ब्रज में भगवान कृष्ण को अगर कोई भगवान बोले तो नंद बाबा कहती हमारे ऊपर विपत्ति है, क्योंकि कृष्ण को कोई भगवान पे मानना नहीं चाहते, भगवान माने मतलब यहाँ विपत्ति है। कृष्ण को तो अपना लाला अपना बालक समझते हैं। इतने में नंद बाबा ने कहा देखो ठीक है, तुम लोगों ने जो बात बताया आप लोगों ने श्रवण किया, कृष्ण बचपन से इतने बड़े बड़े उन्होंने काम किया है, देखो भगवान कभी झूठ बोलते हैं क्या? क्योंकि भगवान को बोला सत्यम परम धीमहि, भगवान को परम सत्य बताया गया। सारे देवता लोग भगवान को कहते हैं बोले सत्य प्रथम सत्य परम सत्य सत्य स जोनि निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान को पुनः पुनः सत्य सत्य कहते हैं, लेकिन ये बात में तो ये झूठ बोलता है, पूरा के पूरा मिट्टी खा लिया। मैया ने पूछी क्यों लाला तुमने मिट्टी खाई? कृष्ण सीधा ही बोलती है बोले ना अहम भक्षित वाशंभो सर्वे मिथ्या विश्वासं। बोले भैया ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी खाई नहीं, मक्खन पूरा पूरा गटक करके खा लिया सबके सब। जब मैया पूछती है क्यों लाला तुमने मक्खन खाई? बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन। ये सबके सब झूठ बात बोलता है। और जब मैं पान खाता हूँ कन्या आकर के मेरे मुंह से जोर जबरदस्ती पान जब खाते हैं इसको निकाल करके मैं झूठा उठाने लग जाता है। अगर थोड़ी सी अगर मक्खन में सिर देने में थोड़ी सी अगर लेट हो जाए, पता नहीं ये जितने मटकी फटकी फोड़ फाड़ करके सब सत्यानाश कर देता है। यदि ये कोई भगवान का कोई लक्षण है, इसको अंदर में तो कोई भी भगवान का कोई लक्षण नहीं दिखता है।
अभी तुम लोग मेरे बात को मत मानो, अभी कम से कम गर्गाचार्य की बात मानोगे, क्योंकि जो गर्गाचार्य वो त्रिकाल दृष्टा है। उन्होंने गर्गाचार्य जब उन्होंने नामकरण करवाया था, पूरा वो चार्ट को निकाल कर नंद बाबा उसमें क्या लिखा, भले आसन वर्णास्त्रयस्य गृह्णोत अनुयुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत तस्मात् नन्दात्मजयं नारायण समगुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन। ये उन्होंने पूरा चार्ट को दिखाया। देखो गर्गाचार्य क्या बोल रहे हैं, बोले तस्मात् नन्दात्मजयं, बोले नंद बाबा तुम्हारा जो आत्मा, जो तुम्हारा ये जो संतान है, बोले कौन है, बोले नारायण समगुणै, भले इसको अंदर में नारायण के बराबर कभी इसको अंदर में बराबर गुण प्रकाश होगा। हाँ, इसलिए श्री नंद बाबा कहते हैं मेरे लाला थोड़ी इतना बड़ा काम थोड़ी कर सकता है। ये कभी कभी नारायण मेरे बच्चे को अंदर में प्रवेश करके ये जो अद्भुत अद्भुत काम को कभी कभी ये नारायण कर डालता है, मेरे लाला थोड़ी कर सकता है। इसलिए सखाओं ने बोला कन्या तुमने थोड़ी गिरिराज उठाया, बोले कौन उठाया, बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कभी गोपन ने करी सहाय, राधा जी की कृपा से गिरिवर लिया उठाया। इसलिए कभी माखन को बल बढ़ो, गोपियों ने घर घर में मक्खन खिलाया ना, कभी माखन को बल बढ़ गया, बोले कभी गोपन ने करी सहाय, बोले कन्या तुमने थोड़ी गिरिराज उठाया। जब तक गिरिराज उठा रहा था हमने क्या किया था, डंडे को लठिया को लेकर टिका कर रखा था कि नहीं, बोले हाँ, बोले तू थोड़ी अकेला उठाया था, हमने जो डंडे को टिका कर रखा लगा करके हम लोगों ने उठाया। अब राधा जी की कृपा से इसलिए गिरिराज उठाया किसने, बोले राधा रानी ने। बोले गिरिराज अगर तुम नीचे उतरोगे, देखो हम अपना दृष्टिकोण से तुमको हम ध्वंस कर देंगे। इसलिए गिरिराज राधा जी के डर से गिरिराज नीचे नहीं उतरे। इसलिए सुख सारी संवाद में सुख कहता है मेरे कृष्णा गिर धारण किया है, सारी कहते चुप रहो, हमारे कृष्ण ने गिर धारण किया। बोले कौन सा हाथ में किया था, बोले बाम हाथ में। बोले कौन सा अंगुल, बोले बाम अंगुल में। बोले किसको तरह धारण किया था, बोले शक्ति की। बोले कृष्ण का शक्ति कौन है, बोले कृष्ण का शक्ति श्रीमती राधा रानी। बोले श्री राधा रानी। राधा रानी ने गिरिराज उठाया, थोड़ी कन्या ने गिरिराज उठाया। इसलिए कहते तस्मात् नन्दात्मजयं नारायण समगुणै। इसलिए यहाँ पर जो गर्गाचार्य जो बात बता रहे हैं, कहते तस्मात् नन्दात्मजयं, हे नंद बाबा तब आत्मज, बोले तुम्हारा जो संतान है वो कौन है, बोले ये साधारण नहीं, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण कौन है, बोले कृष्ण है। लेकिन ये जो नारायण कौन है, बोले ये नारायण में तुम्हारा जो लाला कृष्ण उसका कुछ कुछ गुण ये नारायण में कभी कभी प्रकाश, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं। कृष्ण में तो जो सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोलवारी थी, अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रियमंडल त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कलकुचित। इसलिए कृष्ण के अंदर में जो प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, उनको जो गुण माधुर्य है, कहती ये जो सौंदर्य कहती जो चार ये कृष्ण के अंदर में परिपूर्ण रूप में। लेकिन ये कृष्ण का कुछ कुछ गुण कभी ये तुम्हारे ये नारायण में विद्यमान, लेकिन सब तो नारायण सब कुछ नहीं, कृष्ण ही सब कुछ है। लेकिन ये तो गर्गाचार्य भावना। अभी श्री मैया जसोदा बैठी हुई थी, मैया जसोदा बता रही क्या बात बता रही, तुम्हारा बेटा त्रेता युग में यही था, सत्य युग में यही था, ये युग में ऐसे ही था, कभी उन्होंने रक्षा किया तो कोई काम का बात ही नहीं बता रही। कुछ कुछ पंडित लोग कहते हैं यदि जसोदा सोचे तो काम का कोई बात नहीं बता रहे, काम का क्या बात है। अरे कम से कम तो ये बोले मेरे लाला का कितना शादी होगी, घर में कितने बहू होगी, क्योंकि जब तक बेटा का शादी नहीं होता है तब तक माँ को काम करना पड़ता है। लेकिन घर में शादी हो जाए, बहू आ जाए, फिर घर काम को बहू संभाल लेती है। लेकिन काम का भी बात नहीं बता रहे हैं।
इतने में कहते श्री गर्गाचार्य ने एक श्लोक बताए तो गर्गाचार्य का अपना भाषा में बता रहे, लेकिन मैया जसोदा उसको अपना भाषा में समझ रही थी। इसलिए श्री गर्गाचार्य ने बताए, कहते मैया जसोदा तुम्हारा ये लाला है, बोले बहुनी संति नामानी, बहुनी संति नामानी, तुम्हारा जो बेटा है बहुनी संति नामानी, इसको बहुत सारे नाम है, कृष्ण गोविंद गोपाल बधू। अब अलग अलग गुण भी है, अलग अलग रंग भी है, कोई काली, कोई कभी काले, कभी गोरे रूप में आए। मैया जसोदा सोच रही है, बोले बहुनी संति नामानी, मैया जसोदा सोच रही है मेरे लाला का बहुत सारी बहू होगी, बोले कोई बात नहीं, बहुत बहू होगी तो बहुत अच्छी बात है, जितना बहू होंगे तो उतना सेवा करेंगे, इसलिए बहुनी संति नामानी, अलग अलग नाम। सचमुच से राधा तो कह रही है, ललिता भी साका संभव लता, फिर कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, फिर रुक्मिणी सत्यभामा लालित मित्रवता, इसलिए अलग भैया खुश हो गए, भैया काम की बात बताए। इसलिए कहते कभी यहाँ पर अभी राधा कृष्ण का शादी हुई, अभी जो अगर इनकी शादी हो जाए खत्म हो जाएगी, इसलिए अभी शादी की बात हो गई। अभी वृषभानु महाराज नंदवा में बात हो गया, तुम्हारा बेटे के साथ में हमारा बेटी की शादी हो जाएगी। अभी जो माया ने देखा सब गड़बड़ी हो जा रही है। जब यहाँ पर आकर बैठ करके यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, कन्या की शादी होने वाली, इतने में योग माया को वर्णवासी को दिखाया बेटा का जन्मपति, बेटा बहू को जन्मपति दिला दे। देखो इतने में जोग माया ने कहा, देखो ये जो लड़की है ना ये मंगली है, अगर ये लड़की को साथ में कृष्ण का शादी कराओगे ये सुखी नहीं रहेगी, जिंदगी पर झगड़ा, इसलिए खबरदार शादी मत कराओ। बोले कहाँ शादी कराएंगे, बोले जावट में, वहाँ पर एक अभिमन्यु नाम का एक लड़का है, ये आयना घोष का बेटा है, इसलिए वहाँ पर शादी कराओ। इसलिए जोग माया ने मना कर दिया, वहाँ पर शादी मत कराओ। इसलिए शादी होने पर जो परित्याग जो रस है और परित्याग जो विप्रलंब रस है वो आस्वादन नहीं होगा, फिर वो रस फिर सुखिया रस हो जाएगा, फिर सुखिया रस में जो मिलन का उत्कंठा समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बैठ करके सबके सब ब्रजवासी अलग अलग समय पर अलग अलग विषय पर यहाँ पर अलग अलग विषय पर बात है। संपूर्ण रूप में ब्रजवासियों का संपूर्ण ये लीला है। यहाँ पर आए, यहाँ का धूल लगाए, यहाँ से भगवत प्रेम की प्रार्थना करें। ललिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो